Good morning, students. Welcome back to second part of class 7th English, chapter number 9's poem Garden Snake. This poem is written by Muriel L. Sonne and I, Shweta Somra, your English teacher. Today we are going to discuss the summary as well as question answers of this wonderful poem. आपको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? About this garden snake. क्या पढ़ा था इस स्वीट से प्यारे से स्नेक के बारे में? इसको देख के लग रहा है आपको कि ये पॉइजनस है या आपको बाइट करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं ना, यही मैं कह रही थी. इट्स वेरी स्वीट. ओके, नाउ दिस इज द वर्किंग विद द पोएम पार्ट टुडे. सो बिफोर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स हम क्या करते हैं, छोटी सी समरी देख लेते हैं इस बच्चे के बारे में जिसके गार्डन में एक स्नेक आ गया था, है ना, और वो उसको देख के भाग गया था. ही रैन अवे फ्रॉम द गार्डन because he knew that the snakes are poisonous and they are harmful. But his mother explained him that kind which is in your garden is not harmful to you. You can go and watch it. So he again came back and he watched the snake wiggling by and he started watching the snake standing by the side of the garden. ठीक है, और वो बहुत ही संतुष्ट था, खुश था, क्योंकि उसको पता था कि ये जो स्नेक है ये पॉइजनस या हार्मफुल नहीं है. सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द समरी. Summary of the poem. The poem Garden Snake is a simplistic description of a harmless snake. ये जो poem है, कौन सी? Garden Snake, जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल डिस्क्रिप्शन है. इट्स वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हार्मलेस स्नेक. आपने पढ़ा था ना, बहुत छोटी सी पोएम है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताई हुई है दैट दिस इज डिस्क्राइब्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गार्डन स्नेक. द यंग चाइल्ड narrator encounters a snake in the garden. One day, the young child narrator, the poet, he saw the snake in his garden. He encounters a snake. Encounters मतलब आमना सामना हो गया, ठीक है? A snake in the garden. In his garden, अपने गार्डन में उसने एक स्नेक को देखा. And runs away from it out of fear. और डर के मारे वो भाग गया वहां से तुरंत, जैसा कोई भी करता. ये तो रिएक्शन, बिल्कुल सही रिएक्शन था उसका. However, his mother informs him that certain kinds of snakes are not dangerous at all. Now, when he went inside his house, his mother asked him why you came running. मम्मा ने पूछा ना क्यों आए हो, तो उसने बताया स्नेक के बारे में और मम्मा ने उसको ये एक्सप्लेन किया that this kind of snake is not harmful or poisonous at all. ये जो स्नेक हमारे गार्डन में आपने देखा बेटा, ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है तुम्हें. They feed merely on insects. ये जो स्नेक्स हैं जो गार्डन में मिला है, वो क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं. The young child narrator loses his fear. और ये सब बातें सुन के जो नरेटर है, he lost his fear. He was fearless. उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, उसका सारा भय निकल गया अपनी मम्मा की बातें सुन के. Thereafter, and begins to watch the snake pass through the garden. And then he saw that the snake was passing by wiggling through his garden. और वो वहीं खड़ा रह के ये सब देख रहा था क्योंकि उसकी मम्मा ने उसका डर निकाल दिया था, ठीक है. So this was the poem which we read in the last part. So come along, we will start with the question answers. poem अच्छे से समझ में आया बेटा? सिंपल सा ही poem था. चलो हम questions देखते हैं. Answer the following questions. First, pick out the line that suggests that the child is afraid of snakes. अब हमको एक लाइन पिक करनी है. किससे? पोएम से. क्या पिक करनी है? कि बच्चे को स्नेक्स से डर लगा, ठीक है, या डर लग रहा था. तो ऐसी कौन सी लाइन थी? पोएम में से देख के आप आंसर कर सकते हो. Here I have written it for you. The line was, some snakes are dangerous, they say. This is the second line of your poem. Second line है और इसमें क्या लिखा है कि लोग कहते हैं कि कुछ snakes dangerous होते हैं. So this was why the narrator was scared of that snake which he saw. इस वजह से नरेटर को डर लगा
उस स्नेक को देख के जो उसने अपने गार्डन में देखा था। नेक्स्ट, which line shows a complete change of the child's attitude towards snakes? कौन सी ऐसी लाइन है पोएम में जिससे ये पता चलता है कि जो बच्चे का एटीट्यूड था, नजरिया था स्नेक के बारे में, वो पूरी तरह चेंज हो गया। दैट इज कंप्लीटली चेंज्ड। रीड इट अलाउड, और इसको जोर से पढ़ के बताना है। बताओ, पहले तो वो डर रहा था ना, बाद में उसका डर निकल गया था मम्मा के समझाने के बाद। ऐसा ही हुआ था ना, this thing happened. He was scared of the snakes in the beginning, but when his mother explained him that that kind of a snake is not poisonous, he was not afraid at all, and he stood in the garden and saw the snake wiggling and passing by. ऐसा ही था ना। So that line जो उसका एटीट्यूड चेंज होने के बाद थी वो थी, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। पहले तो वो डर रहा था, है ना, और अब वो क्या कह रहा है, ये तो छोटा सा एक गार्डन स्नेक ही है जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थर्ड, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। व्हाट इज मदर रेफरिंग टू? मम्मा ऐसे कह रही है कि वो जो है वो अच्छा है। वो क्या? कोई फ्लावर, कोई फ्रूट, या कोई क्लोथ्स, कोई बॉल, कोई टॉयज, क्या चीज? मदर इज रेफरिंग टू स्नेक। दैट काइंड ऑफ अ स्नेक इज गुड। ठीक है, क्योंकि पोम में ही गार्डन स्नेक है भाई, पोम का टाइटल ही गार्डन स्नेक है, तो मम्मा भी स्नेक की ही बात कर रही है ना। मदर इज रेफरिंग टू द स्नेक दैट वॉज सीन बाय द चाइल्ड। ठीक है, दैट काइंड इज गुड मतलब वो वाला स्नेक जो तुमने देखा, वो वाला सिर्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट्स इन द ग्रास। अब वो वर्ड आप ढूंढो जिससे पता चले कि स्नेक का मूवमेंट हो रहा है ग्रास में। आई हैव टोल्ड यू, पोएम पढ़ाते टाइम आपको समझाया था ना, आई ड्रॉड दिस थिंग। व्हाट डू यू से? इसको क्या बोलोगे? विगलिंग, है ना, विगल्स, विगलिंग। दिस इज द प्रॉपर वर्ड टू जस्ट टेल दैट द स्नेक इज मूविंग ऑन द ग्रास। द वर्ड इज विगल्स। ठीक है, ये आपकी पोम में है वर्ड। इट मीन्स जो स्नेक है वो ग्रास पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम। 4 वर्ड्स हैं। कौन कौन से? राइमिंग वर्ड्स हैं। Say them aloud. We have to read it aloud. Now, what are those 4 words? अच्छा, राइमिंग वर्ड्स पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा। राइमिंग मीन्स जिनका जो प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हो वो एक ही तरीके का निकले। ठीक है, लाइक अवे, से, बोल रहे हो ना, ए जो साउंड आ रहा है। गुड, फूड, ये भी सेम आ रहा है। ग्रास, पास, मिस्टेक, स्नेक, एक ही तरह की साउंड्स आ रही हैं ना, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। तो सेम राइमिंग वर्ड्स, पेयर्स ऑफ राइमिंग। अवे, से, लुक एट माई फेस, अवे, से, एक ही तरह से बन रहा है, राइम इज सेम। गुड, फूड, ग्रास, पास, मिस्टेक, स्नेक, ये आपको बोल के देखने हैं। ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। जब आप इनको बोलोगे अच्छे से तो आपको और बेहतर समझ में आएगा राइमिंग के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्नेक हैज नो लेग्स और फीट। एक सांप के कोई पैर नहीं होते, बट इट मूव्स वेरी फास्ट, लेकिन फिर भी वो बहुत तेज चलता है। कैन यू गेस हाउ? आप सोच सकते हो कैसे? डिस्कस इन द ग्रुप। आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करो कि स्नेक के तो कोई पैर, हाथ कुछ भी नहीं होते, फिर भी वो कितनी तेज चलता है। द स्नेक विगल्स ऑन इट्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। उसकी बॉडी पे क्या होते हैं बेटा? स्केल्स होते हैं, बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जिनकी वजह से वो मूव करता है क्विकली। इट विगल्स वेरी क्विकली, ऐसे जल्दी 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 ऐसे ऐसे करके, और तुरंत से भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर अ कोब्राज लॉन्ग शार्प टीथ। कोबरा के लंबे लंबे पॉइंटेड दांतों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? आपको याद है?
Where did you come across this word first? Do you remember you have read it in your 6th class in the chapter Desert Animals about the snakes and the teats. उनको क्या बोलते हैं snake के teats को याद आ रहा है? Fangs बेटा, fangs बोलते हैं. और अभी भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था fangs of the snake. The word fang is used for cobra's long and sharp teeth. ठीक है, जो fang है, fang का मतलब लंबे नुकीले दांत. किसके? कोबरा के. I read this word in a story when I was in 6th class and also on Discovery Channel. So I have read this word fang in my 6th class, not in my 6th class, actually it's your 6th class. आप लिख रहे हो कि आपने कहाँ पढ़ा था, आपकी 6th class में भी पढ़ा था and you have heard about this name in television also. कहाँ पे? डिस्कवरी चैनल पे. ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो. इफ़ यू हैव सीन थ्रू द डिस्कवरी चैनल यू मे राइट डिस्कवरी, और इफ़ यू हैव रेड इट इन योर बुक यू कैन नरेट दैट थिंग. ठीक है, समझ में आया अब तक? वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम एज वेल एज द समरी एंड द एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. तो एक छोटे से गार्डन स्नेक की हमने आज एक पोएम पढ़ी थी जिसमें एक बच्चा था जो गार्डन में गया और उसने स्नेक को देखा और भाग के तुरंत अपने घर में घुस गया. मम्मा ने समझाया दैट स्नेक इज नॉट पॉइजनस. देन ही केम बैक एंड ही सॉ द स्नेक विगलिंग एंड पासिंग बाय थ्रू हिज गार्डन. और तब उसका सारा डर निकल गया था. ही वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ द स्नेक एनी मोर, बट इनिशियली ही वॉज अफ्रेड बिकॉज he have heard from many people that most of the snakes are not poisonous, but a few of them are. And he was not able to discriminate between the few. है ना, कौन सा पॉइजनस है कौन सा नहीं है ये चीज़ नहीं पता थी, इसलिए वो स्नेक को देख के डर के भाग गया. मे बी ही वॉज पॉइजनस, क्या पता उसमें पॉइजन हो, हमें थोड़ी पता है भाई. स्नेक को तो हमारे दिमाग में डर बिठा के ही रखना होता है ना. सो वी आर डन विद दिस part 2 of the poem Garden Snake. We will meet in the next class with something very new. Until then, every one of you take care. Have a great day, beta. Keep smiling and keep studying.